الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میں سب سے پہلے رب کریم کا شکر گزار ہوں جس نے کائنات کی بستی بسائی، چاند سورج کے چراغ جلائے، غنچہ و گل سے اسے سجایا اور خوش ذائقہ غذاؤں کا دسترخوان بچھایا، پھر انسان کو عظمت و کرامت کا تاج پہنا کر عالم ہی نہیں عالمین کا مخدوم بنا کر بھیجا، ان کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تزکیے کے لیے قدسی صفت پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور عالم روحانی کے آفتاب جہاں تاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے شرف عالمیت کو رشک ملائکہ بنا دیا، اور بے حد درود و سلام نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے دن بے راہ انسانیت کو پکارنے میں اور جس کی راتیں خدائے کریم کے سامنے انسانیت کے لیے رونے اور ہاتھ پھیلانے میں گزرتی۔ اس کے بعد میں تمام سامعین و حاضرین کی خدمت میں شکر و امتنان کے جذبات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ہر طرح کی مصروفیتوں کو پس پشت ڈال کر جیسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا تعاون کیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ معزز سامعین، میں اکابر دین و ملت کے اس آئین انتخاب صدر پر عمل کرنا چاہتا ہوں جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ بزم کے آغاز سے پہلے ہم کسی ایسے جامع ذات اقدس کا مسند صدارت کے لیے انتخاب کریں جن کی قیادت اور سیادت میں پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچے اور فوز و فلاح کی سرحدوں کو عبور کر سکے۔ تو آئیے میں بھی اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کی اس پر رونق محفل کی صدارت کے لیے حضرت الاستاذ حافظ عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم محتمی مدرسہ حضا کا نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ صدارت قبول فرما کر کارروائی کے آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ اب میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے چاہتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا باضابطہ اور باقاعدہ آغاز اس بابرکت کلام سے کروں جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت و تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے بالکل نرالا ہے، معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آئیے ایسے ہی کلام سے بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں حافظ محمد امین باغوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے بزم کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔
सामाईन ये थे मौसूफ हाफिज मोहम्मद अमीन बागवान, जिनकी तिलावत से सामाईन बहर लुत्फ व सुरूर में गोताखोर होकर समाअत फरमा रहे थे। मुहतरम हज़रात, रब्बे कायनात के बाद अगर कोई ज़ात मुस्तहिक़ तारीफ है तो वह आकाए नामदार फख्र कायनात खुलासाए मौजूदात ताजदार कौनो मका सरकार ई व आ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आइए आपके शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए सुफियान मुनव्वरी को दावत देता हूँ, वो आए और नजराने अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया से मुस्तफा ने ज़ुल्मत मिटा दी, दुनिया से मुस्तफा ने ज़ुल्मत मिटा दी। जिस राह गुज़र से गुज़रे से वफ़ा दिए, जिस राह गुज़र से गुज़रे से वफ़ा दिए। अबू जहल की ख्वाहिश पर सरकार मुस्तफा ने, अबू जहल की ख्वाहिश पर सरकार मुस्तफा ने बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिए, बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिए। दुनिया से मुस्तफा ने ज़ुल्मत मिटा दिए। पत्थर की चोट खाकर और गालियाँ भी सुनकर, पत्थर की चोट खाकर और गालियाँ भी सुनकर आका का है आलम भी दुआ दिए। आका का है आलम भी दुआ दिए। दुनिया से मुस्तफा ने ज़ुल्मत मिटा दिए। शीरी ज़ुबान से अपने हर दिल में मुस्तफा ने, शीरी ज़ुबान से अपने हर दिल में मुस्तफा ने वहदत के गुलसिता का सजरा लगा दिए हैं। वहदत के गुलसिता का सजरा लगा दिए हैं। दुनिया से मुस्तफा ने ज़ुल्मत मिटा दिए। जूदो करम तो देखो हम आसियों के खातिर, जूदो करम तो देखो हम आसियों
आसियों के खातिर रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। दुनिया से मुस्तफा ने जुल्मत मिटा दिए। जिस राह गुजर से गुजरे दर से वफा दिए। अस्सलाम वालेकुम। हजरत गिरामी, ये थे मौसूफ जो आपके सामने बड़े ही दिलकश अंदाज में, दिल आवेज लहजे में और मिकनातीस आवाज में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। सामाईन इकराम, दुनिया में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। खुदाए ताला ने मुनकिरीन नबूवत की आंखें खोलने के लिए हर नबी को मुअजिज़ात अता फरमाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत से मुअजिज़ात अता फरमाए गए, जिनमें सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान मजीद है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा एजाज इसकी कुव्वत तासीर है। सेहतमंद मुआशरा की तश्कील, इंसानी जिंदगी की तामीर और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की आला रूहानियत इसी की रहीने मिन्नत है। चुनांचे इसके अफ़कार व अक़ाइद की सही नक्शाबंदी इसे कुरान मजीद से हुई। उन्होंने सब इस्तिक़ामत का सबब इसे कुरान मजीद से हासिल किया। कुरान मजीद की तालीम और तासीर का नमूना जो शख्स इंसानी सीनों में देखना चाहे, वो सहाबाए किराम, ताबईन इज़ाम और अइम्माए दीन के हालात का मुताला करे। मुसलमानों के उसूल मंजिल, उसूल तमद्दुन और उसूल हिकमत का मुताला करे। ये सब नमूने कुरान मजीद ही के तैयार करदा हैं। ज़ैद इब्न असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाने की इजाजत चाही, तो मैंने कहा वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा, ए असलम, तुम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसा पाते हो? मैंने कहा वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब वो गुस्से में होते हैं तो मामला बड़ा दुश्वार हो जाता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अगर उस वक्त मैं उनके पास होता तो उनके सामने कुरान इतना पढ़ता कि उनका गुस्सा चला जाता। गौर कीजिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जागो जलाल के बादशाह, जिन्हें यूरोप जनरल उमर के नाम से याद करता है, मगर कुरान मजीद अपने अंदर ऐसी तासीर रखता है कि उसके असर से वो भी मुतासिर हुए नजर न रहते, और जिस वक्त कुरान मजीद पढ़ा जाता उनकी हालत यकायक बदल जाती। कुरान मजीद के बेशुमार मुअजिज़ात में से एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा ये है कि वो हर किस्म की तहरीफ और तसर्रुफ, तब्दील और तग़य्युर से महफूज़ है। यानी नुज़ूल के वक्त से आज तक उसमें एक नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ, बल्कि मिनवान आज भी मौजूद है और क़यामत तक अपने इसी मुअजिज़ाना शान के साथ बाक़ी रहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, वइन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। बिलाशुबा कुरान एक इज्जत वाली किताब है, जिसके पास बातिल न सामने से आ सकता है और न पीछे से। सामने से मुराद नुज़ूल कुरान का ज़माना है और पीछे से मुराद नुज़ूल कुरान के बाद का ज़माना है। यानी अहद नबवी से ता क़यामत उसमें किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं किया जा सकता। हाफिज कुरान का दर्जा और मकाम और रुतबा इस्लाम की नज़र में बहुत ही बुलंद है। कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम में मसरूफ रहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे और पसंदीदा हैं। चुनांचे इरशाद नबवी है कि तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हाफिज कुरान का अल्लाह ताला के नजदीक भी बड़ा मकाम है, और ये मकाम और तकर्रुब हिफ्ज़ कुरान मजीद की बरकत की वजह से है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक मजलिस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे होते हैं। आपके इस इरशाद पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुतवज्जह हुए और इश्तियाक और तजस्सुस के साथ सवाल किया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान। उनका बड़ा मकाम है और ये लोग अहलुल्लाह और खासाने खुदा हैं। निस्बत बड़ी ऊंची चीज है और निस्बत ही से किसी चीज की कीमत मुतय्यन होती है। क्योंकि कुरान मजीद कलाम रब्बानी है, खुदा का कलाम है,
रहमत से हाफिज कुरान का मकाम और रुतबा तो बुलंद हो ही जाएगा। इस हकीकत को हम इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जब किसी शख्स का किसी बादशाह, हाकिम या बड़े ओहदेदार से किसी तरह का ताल्लुक और राबता हो जाता है तो उसका शुमार खास लोगों में होने लगता है और वो शख्स उस ताल्लुक को अपने लिए फख्र और इज्जत की चीज समझता है, गोया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। जब इस आरजी, फानी और नापायदा दुनिया के ताल्लुक का ये आलम है तो उस शख्स की खुशी का क्या अंदाजा हो सकता है जो अपने रब हकीकी का मुकर्रब और खास हो जाए। वाक़िअतन वो इंसान काबिल रश्क और लायक सद फख्र है। यही वजह है कि हुफ़ाज़ कलाम को खासाने खुदा कहा गया है। मुस्नद फिरदौस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मजमे आम में हाफिज कुरान की अज़मत और उनके शरफ का इजहार और ऐलान फरमाएंगे। कंज़ुल उम्माल में ये रिवायत है कि हाफिज कुरान और कुरान को बार बार पढ़ने वाले की अकल आखिरी उम्र तक ठीक और दुरुस्त रहती है और मौत के बाद कब्र में हाफिज कुरान की जिस्म की हिफाजत होती है। तबरानी की इस रिवायत से भी हाफिज कुरान की अज़मत ज़ाहिर होती है कि हुफ़ाज़ कुरान जन्नतियों के मॉनिटर होंगे। हुफ़ाज़ कुरान जन्नतियों के मॉनिटर होंगे। एक हदीस में हाफिज कुरान के दर्जात की बुलंदी इस तरह बयान फरमाई गई है कि हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और बुलंद होते जाओ और ठहर कर इत्मीनान से पढ़ो जिस तरह तुम दुनिया में ठहर कर पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा दर्जा वही होगा जिस जगह तुम कुरान के आखिरी आयत पढ़ोगे। जिसने फजीलत कुरान की वजह से हाफिज कुरान की खाने पीने से तवज्जो की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे हाफिज कुरान के दिल में मौजूद हर हरफ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाते हैं और 10 गुनाह माफ फरमाते हैं। जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने मेरी वजह से इसकी इज्जत की है, तुझे इकराम और बदला देने के लिए मैं काफी। क्योंकि कुरान मजीद कलाम इलाही है और उसको तमाम कलामों पर फजीलत हासिल है, इसलिए ऐसे अजीम शान और मुकद्दस कलाम का पढ़ना भी अजर और सवाब से खाली न होगा। इस्लाम में जितनी इबादतें हैं उनका सवाब उसी वक्त शरीयत में मुरतब होता है जब उसके तमाम अज्जा पूरे हो जाते हैं। लेकिन तिलावत कलाम पाक एक ऐसी इबादत है जो और इबादतों से मुमताज है। उसके अंदर हर जुज़ और हर हरफ पर अजर और सवाब मिलता है। चुनांचे हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक हरफ कुरान मजीद का पढ़ा उसको एक नेकी मिलेगी और ये एक नेकी का अजर 10 नेकियों के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ और लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। इसमें कोई शुबा नहीं कि कुरान मजीद का पढ़ना बाइस अजर और सवाब है, इसी तरह उसका पढ़ना मुजीब बरकत भी है। चुनांचे जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसमें नूर की बारिश और तरह तरह की खैर और बरकत नाज़िल होती है। हदीस में आया है कि जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा जाता है उसकी बरकत में इजाफा होता है। एक दूसरी हदीस में है कि जिन घरों में कुरान मजीद पढ़ा जाता है वो आसमान वालों यानी फरिश्तों को इस तरह दिखाई देते हैं जैसे जमीन वालों को आसमान के तारे नजर आते हैं। मतलब यह है कि रात की तारीकी में जिस तरह सितारे चमकते हैं और जगमगाते हैं, इसी तरह फरिश्तों को वो घर चमकता और जगमगाता नजर आता है जिसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता है। एक हदीस में आया है कि नव्विरू मनाजिलकुम बिस्सलाति व क़िराअतिल कुरान, अपने घरों को नमाज और कुरान मजीद पढ़कर मुनव्वर करो। अजीजान गिरामी, तिलावत करने वाले को जिस तरह अजर दिया जाता है और उसके घर को मुनव्वर किया जाता है, इसी तरह उसके असातिज़ा और वालिदैन को भी नवाजा जाता है। चुनांचे हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर और अफजल बंदा हुआ है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर मुअल्लिम कुरान को जन्नत में दाखिल कराने के ज़ामिन हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बेटे को नाज़रा कुरान करीम पढ़ाया उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, और जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम का हाफिज बनाया, क़यामत के रोज उसको अल्लाह ताला चांद की सी सूरत पर महशूर फरमाएंगे
جس کی چمک 14ویں چاند کی جیسی ہوگی، اور اس کے بیٹے کو کہا جائے گا پڑھ، بس جب بھی وہ کوئی آیت پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کے باپ کا درجہ بلند فرماتے رہیں گے، حتیٰ کہ حافظ اس کے آخر تک پہنچ جائے گا جتنا قرآن کا حصہ اس کو یاد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دی اس کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج سے اہل جنت اس آدمی کو اپنے بچے کے دنیا میں قرآن کی تعلیم دینے کو پہچانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ایسا ہار پہنائیں گے جس پر اولون اور آخرون فریفتہ ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جب احکام قرآن پر عمل کرے اس کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام کردہ نے اعتقاداً اور عملاً اس کے لیے اس کے گھر کے 10 افراد کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کائنات علیہ افضل الصلوات والتحیات کا ارشاد گرامی ہے جس آدمی نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور اس پر عمل کیا قیامت والے دن اس کو ایسے نور کا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کے مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسی دو پوشاکیں دو لباس پہنائی جائیں گی جن کی پوری دنیا بھی قیمت نہیں لگا سکتی، اور اس کے والدین ان کو پہننے کے بعد کہیں گے کہ ہمیں کس چیز کے بدلے میں یہ انمول لباس پہنائے گئے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کے عوض میں پہنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حفاظ کرام کو ملی یہ بشارتیں صرف ان حفاظ کرام کے لیے ہیں جو قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہوں، جن کے اندر تقوی و خوف خدا ہو، صالحیت کتاب و سنت پر جس کا عمل ہو، حفظ قرآن کی جو یہ عظیم دولت ملی ہے اس کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہوں، اور ساتھ ہی اپنی نشست و برخاست عادت و اطوار اخلاق و کردار روزہ قضا سے ثابت کریں کہ وہ واقعتاً حافظ قرآن اور خدا کے نمائندے ہیں۔ نیز ان کا سینہ طمع، لالچ اور تمام اخلاقی اور روحانی بیماری سے پاک ہے۔ تو آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔